we have finished visualizing solid shapes yesterday. Now, last warning to you, I'm telling you. Today we will start with chapter number 6, triangle and its properties. But let me tell you one thing, that from 6th chapter, some of the exercise they have been deleted. I will tell you later on that which exercise we are not supposed to do. And the exercise which we have to do, I think 2 exercises out of the whole chapter we will do. And out of which 6.5 is there, that is in my notice that 6.5 is there. So rest of the exercise I will tell you that which are to be done and we will do in the class. And 6.5 is one of the exercise that we have to do in 6th chapter. So let us continue. Let us start. I said 2 exercises are there. One of them is 6.5. Okay. चलिए. So let us start with 6.5. बेटे जितनी मैं करवाऊंगी वो वाली बाकी डिलीट 6.5 करने लगे. चलिए let us start. 6.5 एक्सरसाइज सब कुछ बताऊंगी. यस ओके. 6.5 exercise, it is based on one very famous and important theorem of maths, and that is known as Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Let me tell you, अच्छा लगता है जब सराउंडिंग में 2-4 बच्चे बोल रहे हैं और एक बच्चा उनको कहता है चुप कर जाओ, सुन लेने दो मैम को. इट्स गुड. लिसन. Pythagoras theorem. Let me tell you that what is the Pythagoras theorem and what is its application. One day, Pythagoras, one of the famous mathematician, he was playing on in a desert, and he was playing with sand. He was picking up the sand and then keeping it in one container or in the another container. He gets bored of this activity. Then he starts another activity. He was thinking, let me draw some shapes on the sand. He was very much fond of drawing triangles. He was very much fond of drawing triangles. But I will ask you the story afterwards. So better to listen carefully. He was fond of, you can say, drawing triangles. ट्राइंगल ड्रॉ करने का उसको बहुत शौक था. सैंड पे वो ड्रॉ करता जा रहा है. समटाइम्स ही इज ड्राइंग ट्राइंगल लाइक दिस, देन दिस, कभी ऐसे ड्रॉ करता है. मतलब ही कीप ऑन ड्राइंग द ट्राइंगल. देन ही ड्रॉज वन ट्राइंगल which was a right angle triangle. Right angle triangle means having one angle to be 90 degree. He says, he thinks in his mind that this is a triangle which can be my favorite. उसको लगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, उसकी शेप मुझे बड़ी अच्छी लग रही है. तो राइट एंगल ट्रायंगल उसको पसंद आया बहुत ज्यादा. जब उसको पसंद आया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे कुछ मैथमेटिकल रिसर्च करूं. सबसे पहले उसने इसकी साइड्स को एक पर्टिकुलर नेम देने की कोशिश की. उसने देखा कि इसकी 3 साइड्स हैं. एज अ ट्रायंगल इज हैविंग 3 साइड, सो इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज आल्सो हैविंग 3 साइड. राइट एंगल ट्रायंगल में भी हमारे पास 3 साइड्स होती हैं. तो अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, इसकी 3 साइड्स हैं, वी ऑल नो. तो उसने इनको एक पर्टिकुलर नेम दिया. उसने देखा कि वन साइड इज देयर हु वाज स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड.
ऐसे लेटी हुई है, इसको उसने बोल दिया ट्राइंगल का बेस। एंड देन ही ऑब्जर्व दैट देयर इज अ साइड which is standing on the base at 90 degree. अगर आपने किसी चीज पे स्टैंड करना है प्रॉपरली, you have to make the angle of 90 degree. That's why then अगर 90 डिग्री एंगल बनेगा only then you can measure the height. आपको पता है जब आपको स्पोर्ट्स हॉल में sometimes your game teacher call to measure your height and sir said sit straight, stand straight, है ना? कभी ऐसा हुआ कि आपकी हाइट आप ऐसे खड़े हो measure हो? Never. आपकी हाइट हमेशा when you stand straight on the ground, you are making angle of 90 degree with the ground, only then your height is measured. So he says that this line, it is standing on the base. He called it, he gave it a special name, and that is perpendicular. Or in another word, sometimes it is called height also. Perpendicular और height, दो नाम, इसमें से कोई भी नाम आप इसको एड्रेस कर सकते हो। बी के लिए आई विल यूज स्मॉल बी एंड परपेंडिकुलर के लिए आई विल यूज स्मॉल एच। पी कह लो क्योंकि उधर वाले का नाम भी एच से होगा, इसलिए हम इसको पी कहते हैं। परपेंडिकुलर स्टैंड्स, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर and B stands for base. You know, when I stand on the earth, earth is my base and I am perpendicular on the earth. ठीक है, ऐसा कभी हो सकता है I become the base and earth become perpendicular on me? नहीं ना, क्योंकि इतनी बड़ी धरती को मैं अपने सिर पे उठाऊंगी तो चूर चूर हो जाओ, है ना? It never happened that I fall like this as a base and earth is on me as a standing position, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। बट इस केस में, इस ट्राइंगल के केस में ऐसा हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर बेस बन जाए और बेस क्या बन जाए? अगर आप इस ट्राइंगल को रोटेट करो तो ऐसे इधर की तरफ रोटेट करो तो ये ट्राइंगल आपके पास ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना। जो बेस है वो ऊपर चला जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब बेस और परपेंडिकुलर में से आप इंटरचेंज कर सकते हो until or unless it is not mentioned. आप किसी को भी बेस कह सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर कह सकते हो, ठीक है? नेमिंग कर रहा है वो, नेम रखता जा रहा है अपने अकॉर्डिंगली। मैथमेटिशियन है, जो भी उसने बोला सबने मान लिया। हम इसका कोई नेम आज कुछ और रख दे, हमारी बात कोई नहीं मानेगा, ठीक है? मैं कहती हूँ इसका नाम चुन्नू रख देती हूँ, इसका मुन्नू, कोई मानेगा? मेरी बात कोई नहीं मानेगा, बिकॉज आई एम नॉट ए मैथमेटिशियन। वो मैथमेटिशियन था इसलिए उसकी बात सबने मान ली कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। अब बात आई इस साइड की, जो कि इसमें से तीनों में से बच जाती है। इस साइड का नाम उसने रखा हाइपोटेन्यूज। उसने एक राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स की नेमिंग कर दी। आपको पता है सबसे पहले नेमिंग करनी बहुत जरूरी है। जब भी एक बच्चे का बर्थ होता है तो सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है, ताकि कोई उसको गोलू, मोलू, चुन्नू, मुन्नू, काकू, रामू ना बुलाना शुरू हो जाए। इसलिए पहले इसका नाम रख दो ताकि सारे इसको इसके पर्टिकुलर नेम से बुलाएं। मास्क पहनने का एक नया तरीका राघव जी ने इन्वेंट किया। यहाँ पे मास्क, क्या बात है बेटे। अभी तो कोरोना ने सिर्फ हमारी नोज और हमारे माउथ के थ्रू एंटर करना शुरू किया है। डोंट गिव दिस बुलिश आइडिया कि इट कैन एंटर थ्रू हेड ऑल्सो। हेड पे भी मास्क लगा दो, फिर तो हमारी शक्ल बिल्कुल ही नहीं नजर आएगी ना। मास्क का पर्पस ये है, तो यही रखो, इसको यहाँ मत पहनो। चलिए, इसको कहते हैं कि मतलब जो बच्चे होते हैं वो कितने इनोवेटिव होते हैं एंड दे कैन बी द मतलब यू कैन से इन्वेंटर ऑफ न्यू इन्वेंशंस। कि हम मास्क को ऐसे डाल सकते हैं, अगर थक गए हैं मास्क यहाँ पे डाल के, तो एक और तरीका आगे लोग कहते हैं कि ऐसे हाथ में पकड़ लो अगर थक गए हो, गुम नहीं होता। राघव जी ने दूसरा तरीका बताया, यहाँ से यहाँ तक। क्या बात है जी, ठीक है। हाँ, थक गए हो तो यहाँ, जैसे लोग क्या करते हैं स्पेक्स से अगर थक जाते हैं तो वो यहाँ पे लगा लेते हैं, है ना, लाइक दैट। लिसन, सो he has named the three sides of a right angle triangle. The side which is sleeping position base, which is standing position perpendicular, and which is slant, it will be hypotenuse. ये होगी हमारे पास तीन साइड्स ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल। सबने बना लिया इसको? बना लो।
make it hypotenuse, base and perpendicular. जहां जहां गुड़ चीनी वहां वहां कीड़ियां आनी आनी है, क्योंकि कीड़ियों को गुड़ भी पसंद है, चीनी भी। और जहां जहां 90 डिग्री का एंगल वहां वहां पाइथागोरस थ्योरम में आना ही आना है, क्योंकि पाइथागोरस को 90 डिग्री का एंगल। अच्छा एक मिनट, ये थ्योरम की, वैसे थ्योरम के फुल स्पेलिंग ये हैं, शॉर्ट में हम लिख देते हैं TH'(M), THEOREM थ्योरम के स्पेलिंग है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया TH'(M). थ्योरम THOREM, इसको ब्रैकेट में ऐसे भी लिख, मैं जब भी लिखूंगी आई विल राइट इट लाइक दिस THM, ऊपर कोमा डाल के पोस्टॉफिस, शॉर्ट फॉर्म ऑफ थ्योरम। जहां जहां गुड़ चीनी वहां वहां कीड़ियां, जहां जहां 90 डिग्री वहां वहां पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज पाइथागोरस को 90 बहुत पसंद था। ठीक है, चलिए ट्राइंगल लेने के बाद, उसकी साइड्स को डिफाइन करने के बाद पाइथागोरस ने एक थ्योरम को इन्वेंट किया। अब बात आई कि इस थ्योरम का नाम क्या रखा जाए। पाइथागोरस कहता कि अगर इन्वेंट मैं कर रहा हूं तो नाम भी मेरा ही आना चाहिए पूरी दुनिया में, ये तो नहीं थ्योरम पाइथागोरस का हो और नाम रोहन जी का हो, राघव का हो। थ्योरम पाइथागोरस का और थ्योरम का नाम राघव थ्योरम। कैसे भाई, पाइथागोरस ने अगर थ्योरम इन्वेंट किया है तो थ्योरम का नाम भी पाइथागोरस थ्योरम होगा। So let us start. Let us see what is the Pythagoras theorem. सबसे पहले ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में होगा, that you can see on the board. I have made a right angle triangle. Pythagoras theorem, it will always hold in case of right angle triangle. पाइथागोरस थ्योरम हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में होल्ड करता है। अब थ्योरम क्या था, उसने इन तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन दिखाने की कोशिश की। हमेशा याद रखना, जब भी आप कभी रैंडमली फ्री बैठे हो, आप कोई भी 90 डिग्री का ट्राइंगल बनाना, ठीक है, कोई भी साइड ले लेना, 6 ले लेना, 7, 5, एनीथिंग यू कैन टेक। और जब आप ये वाली साइड को मेजर करोगे ना, ये हमेशा इन दोनों से बड़ी आएगी। पाइथागोरस ने भी ये चीज इमेजिन की, ड्रॉ कर करके, मेजर कर करके, कि जो तीसरी साइड आ रही है हाइपोटेन्यूज, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये मैं लिखवाऊंगी, पर रिलेशन क्या होगा तीनों में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रिलेशन शुड बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मैं h लिख रही हूं, is equal to perpendicular square plus base square. Pythagoras theorem represent the relation between h, p and b. That means hypotenuse, perpendicular and base. But the relation is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. कहता आप इन दोनों को, ये इतना बड़ा है ना, सुनो, हाइपोटेन्यूज इतना बड़ा है ना कि ये सिर्फ इन दोनों को ऐड करके नहीं आएगा, इतना बड़ा है कि इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करके आएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करके आएगा। सो यू विल रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट पाइथागोरस थ्योरम, it represent the relation between hypotenuse, perpendicular and base, and what the relation is, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. यही है। So this is called Pythagoras theorem. फर्स्ट स्टार लिखो, स्टार फर्स्ट। Pythagoras theorem can be applied. Pythagoras theorem can be applied only in a right angle triangle. Pythagoras theorem can be applied only in a right angle triangle.
Pythagoras theorem can be applied only in right angle triangle. पहला पॉइंट हो गया. सेकंड, in a right angle triangle, in a right angle triangle, hypotenuse is the longest side. In a right angle triangle, hypotenuse is the longest side. In a right angle triangle, hypotenuse is the longest side. ये बातें सारी जो भी मैंने लिखवाई हैं, आपको डिक्टेट करवाई हैं, साइड, ये सब आपने याद रखनी है. कुछ भी आ सकता है इसमें से, पेपर में से, कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम व्हिच साइड इज लॉन्गेस्ट, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लॉन्गेस्ट साइड इज नोन एज. तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है और इसकी एप्लीकेशन है हमारी एक्सरसाइज 6.5. अगर तीन नंबर्स ये वाला रिलेशन सेटिस्फाइड कर दें तो इसका मतलब वो तीन नंबर्स कैसे ट्राइंगल्स की साइड बन जाएंगी, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड. अगर मैं रैंडमली तीन नंबर्स लूं, इसमें बड़े का स्क्वायर करूं, फिर दो छोटे का स्क्वायर करूं, उनके स्क्वायर को ऐड करके बड़े का स्क्वायर के इक्वल आंसर आ जाए, देन 3, 5, 7 विल बी द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन. लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 6.5 exercise, question number first. Look at your books. First question, PQR is a triangle. PQR is a triangle right angled at P. देखना जरा बोर्ड की तरफ. ये ट्राइंगल मैंने बनाया. अब मैंने PQR इसकी नेमिंग करनी है. कीप वन थिंग इन माइंड, दिस इज राइट एंगल एट P. तो आपने राइट एंगल पे P लिख दिया. P का प्लेस, राइट एंगल का प्लेस फिक्स है, तो आपने P लिख दिया राइट एंगल पे. ट्राइंगल का नेम PQR है. हाँ. लिसन, तो P आपने 90 डिग्री बोल दिया, बाकी बचा Q एंड R. Q को यहाँ लिख लो, R को यहाँ. Q एंड R को आप कहीं भी लिख दो, चाहे कुछ बच्चे कहते हैं मैंने R यहाँ लिखना, Q, एनी वे यू कैन मार्क Q एंड R, बट P शुड बी मार्क्ड एज अ राइट एंगल. तो पहले फिगर बन गई. अब देखो क्या कह रहा है. वी आर गिवन PQ इज इक्वल टू 10. मार्क करो, PQ इज इक्वल टू 10. मार्क इट. PR is equal to 24. PQ is equal to 10 and PR is equal to 24. हाँ, सेंटीमीटर. ठीक है, ये वैल्यूज है हमारे पास PQ एंड PR की. एंड वी नीड टू फाइंड व्हाट. क्या हुआ आपका क्वेश्चन मार्क. सबसे पहले आप यहां पे लिखो, हियर perpendicular is equal to PQ is equal to 10. Agree? Perpendicular कौन है, PQ, और इसकी वैल्यू कितनी है 10. Base is equal to PR is equal to 24. ठीक है. Hypotenuse is equal to RQ is equal to question mark. सबसे पहले जो भी आपके पास था यू हैव रिटन इट. 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होना ही होना है. राइट डाउन बाय पाइथागोरस थ्योरम. बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी गलत बोला मैंने, क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू perpendicular square plus b square. By Pythagoras theorem, hypotenuse square, this is perpendicular square plus base square. Values put करो. Hypotenuse आपने फाइंड करना है, उसका नेम क्या है, RQ.
इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। आर क्यू आपने फाइंड करना है, पी क्यू इज 10 एंड पी आर इज 24। पी क्यू इज 10 एंड पी आर इज 24। नाउ आर क्यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर मीन्स 10 will be multiplied 2 times and 24 576. After doing the square you will get this. Square means same number will be multiplied 2 times. So RQ square is 676. कौन स्क्वायर? क्या बात है, अगर मल्टीप्लाई हो तब डिवाइड होता है, ये तो पावर में है। हमने एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स किया था, याद है सबको? एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स में क्या होता है कि अगर एक साइड पे पावर है दूसरी साइड में भी पावर है तो पावर पावर कट जाती है। ये किया था ना हमने। नाउ द प्रॉब्लम इज हमें चाहिए ये आर क्यू, हमें ये पावर नहीं चाहिए। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर किसका फाइंड करना है? आर क्यू का। हैंड डाउन। ये पावर हमें नहीं चाहिए। ये पावर हमेशा इधर पावर के साथ ही कट होएगी। इसका मतलब अगर इधर 2 पावर है इधर भी किसी नंबर की 2 पावर आएगी, 2 2 कट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू राइट अ नंबर एज द पावर ऑफ द अनदर नंबर। आपने अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं किया, इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कि हम 676 को किस नंबर की 2 पावर लिख सकते हैं। एक मिनट, तरीका क्या होता है? आपने 676 का एलसीएम लिया, ले लिया एलसीएम, ये आ गया। अब आपने इसको एक नंबर बनाना है जिसका स्क्वायर ये नंबर। देखना ध्यान से, आपने डबलेट में से एक नंबर लेना है। 2 बार 2 आए तो उसमें से 1 2 चूज कर लिया। 2 बार 13 आए तो उसमें से 1 13 चूज कर लिया। कितना बना? 26। डबलेट्स में से एक एक नंबर चूज करके आपके पास बना 26। इसका मतलब ये आपका 676 जो है वो 26 का स्क्वायर होगा। करके देख लो आप, 26 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, आपके पास 676 आएगा। ऐसे आपको याद नहीं होगा, जैसे 100 का सबको याद है, किसका स्क्वायर होता है? 10 का, 9 3 का, 4 हमें 10 तक 100 तक ही आते हैं। ठीक है, आगे हमें नहीं आता। तो मेथड क्या होएगा? यू टेक द एलसीएम, 2 पेयर में से एक एक नंबर लिखते जाओ, जो नंबर आया उसी का वो स्क्वायर है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए था आरक्यू के ऊपर, अब स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसिल्ड। सेंटीमीटर। इस नंबर को किसका स्क्वायर लिखें ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। दैट आई एम टेकिंग। एलसीएम लेके डबलेट में से एक नंबर चूज कर लेना, 2 2 में से एक, 13 13 में से एक। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट ओके बेटे? कितना आंसर आया? हाँ वही आया ना। हाँ लिख लो। $576 आएगा। दोबारा करके देखो।
576 आएगा। Let us start, बच्चे नॉइस नहीं बिल्कुल भी। Let us start with question number 2. Question number 2, आवाज बंद। Look at your books. Question number 2. ABC is a triangle right angled at C. फटाफट से C को यहां लिख लो। A and B को कहीं पे भी लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। C को राइट एंगल पे लिखना है क्योंकि लिखा हुआ है कि ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट C. A B को जहां मर्जी लिख दो। Is it okay? Is it okay? Let us see what he says next. He says take AB to be 25. AB की वैल्यू 25, AC equal to 7, and this time we want to find BC. This time we want to find क्या? BC. चलो लिखते हैं। Here perpendicular equal to AC equal to 7, hypotenuse equal to AB equal to 25, base equal to BC equal to question mark. हाँ जी हाँ जी। Now listen. Now पूरा पाइथागोरस थ्योरम लिखने की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो P डॉट G डॉट T बाय क्वेश्चन नंबर 2 A यस PGD का मतलब पाइथागोरस थ्योरम PGT पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट फॉर्म IPL Indian Premier League like that PGT is पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते। चलिए अब फॉर्मूला लगाओ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज AB, perpendicular is AC and base is BC. Hypotenuse is AB, perpendicular is AC and base is BC. Values put करो। AB is 25, AC is 7, BC हमें फाइंड करना है। Now see 25 into 25 625, 7 into 7 49. अब आपको पता है हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, मैंने आपको बोला था जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला करना। BC की वैल्यू निकालनी है, BC को अकेला करेंगे प्लस 49 उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस 49। 625 minus 49 is equal to BC square. 625 minus 49 is 576. अब 576 का आप लोगे एलसीएम। लेना पड़ेगा, हमें पता ही नहीं है किसका स्क्वायर है, या तो याद कर लो। देखो 2 2s में से 1 2, 2 2s में से 1 2, 2 2s में से 1 2 एंड 2 3s में से 1 3। ये बना 24, तो 576 किसका स्क्वायर हो गया 24। ये 576
हाँ जी, नाउ स्क्वायर गेट cancelled. You are having BC equal to 24. Square get cancelled. BC equal to 24. Chalo, we'll continue tomorrow.